नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। जिला पंचायत में बैठक की अध्यक्षता की। बीदर में 27 अगस्त को रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन दौड़ का आयोजन, अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील। धमकी भरे पत्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ लेखकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। सीएम सिद्धरामैया के प्रस्ताव पर बोली बीजेपी, यह सिर्फ राजनीति है। जेडीएस का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी विधायकों पर उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। आज सुबह वह बीदर शहर पहुंचे, जहां शहर के हुबशी कोट गेस्ट हाउस में कुछ पत्रकारों आदि से मुलाकात की। इसके बाद वह जिला पंचायत कार्यालय में जिला राजस्व विभाग की प्रगति परिशीलन बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर वन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान सहित विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली और जिले के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान बैरेगौड़ा ने मीडिया से भी बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूचನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸು ವಿಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 27 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತದ್ದು ಈಗ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ 10ಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. 27 ದಿನ ತಗೊಂತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ವಿಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ. ಅಂತದ್ದು ಇವತ್ತು 9 ದಿನ ಸರಾಸರಿ, 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಗತಿ. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ್ದು ದಂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ, ನಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮಿಷನರು, ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರು, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 1 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೂಮ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಂಥವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಜನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದು ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಚಿವರು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜನಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ, AC ಅಂತ, DC ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ವಿಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಒಳಗೆ ವಿಲೆ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಳಂಬ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭೇಟಿ. बीदर शहर में जिला पुलिस विभाग और अन्य स्कूल कॉलेज सहित संगठनों द्वारा 27 अगस्त को शहर में रहे ऐतिहासिक किले से सुबह 5 बजे रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको 3 भागों में रखा गया है। पहला 10 किलोमीटर, दूसरा 5 किलोमीटर और तीसरा और अंतिम 2.5 किलोमीटर रखा गया है। यह रन यातायात नियमों के संबंध में जागृति लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में QR कोड स्थापित किए गए हैं, जहां युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। केपी न्यूज इस रन की सराहना करते हुए लोगों से अपील करता है कि इस रन में अधिक से अधिक लोग भाग ले और रोड सेफ्टी के संबंध में जागरूकता फैलाने में सभी लोग आगे आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में 24 अगस्त संगमा और कर्नाटका सेक्स वर्कर्स द्वारा आयोजित सेक्स वर्कर्स समानता और न्याय सम्मेलन में मुख्य वक्ता जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव न्यायमूर्ति SK कनकट्टी ने यौन कर्मियों से अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का स्पष्ट आह्वान किया। मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोहर इलावर्ती ने पुरातन अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम को निरस्त करने की मांग की। यह 1 सदी पुराना कानून है। महिलाओं का शोषण रोकने के लिए 1986 में हुए संशोधन के बाद भी इस कानून का दुरुपयोग जारी है और यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। IGPA के तहत 80% मामले धारा 8 अनुरोध के तहत महिला यौन कर्मियों को दंडित करने के लिए है। कानून बनने पर IGPA के कार्यान्वयन महिला यौन कर्मियों की सुरक्षा के विधायी इरादे के खिलाफ किया जा रहा है। IGPA को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए और सेक्स वर्कर्स को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी यौन कर्मियों की मुख्य मांग को दोहराया। ट्रेड यूनियन नेता SM शिरोमणि ने भी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेक्स वर्कर्स के लिए घर बनाने के लिए जमीन की मांग की। अपना संघर्ष मत रोको, हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक हमें अपने सभी श्रमिकों के अधिकार नहीं मिल जाते। 5 जिलों के 100 से अधिक सेक्स वर्कर्स ने एक सम्मेलन में भाग लिया। दर्शकों को संबोधित करते हुए, जिनमें बीदर जिले के सभी तालुकों से ज्यादातर महिला यौनकर्मी शामिल थे, न्यायमूर्ति कनकट्टी ने कहा कि यौनकर्मी हमेशा कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और वे बिना किसी भेदभाव के सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। झूठे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही झूठे जाति प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया गया है और ऐसे झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम लेखाकारों, राजस्व निरीक्षकों और तहसीलदार टायर 1 और 2 को निलंबित कर दिया गया है और कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ा लेखकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि उन्हें अज्ञात लोगों से धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। वरिष्ठ लेखक के मारुला सिद्धप्पा ने सिद्धरामैया को बताया कि उनके अलावा कुम वीरभद्रप्पा, वसुंधरा भूपति और बंजगेरे जयप्रकाश को भी ऐसे पत्र मिल रहे हैं। मारुला सिद्धप्पा ने कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास है। अगर ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो डर है कि गौरी लंकेश और प्रोफेसर MM कलबुर्गी की हत्याएं दोहराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम है, लेकिन यह प्रभावी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक मजबूत टीम गठित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अंतर्राज्यीय जल विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाने में विपक्षी दलों से सहयोग मांगा, लेकिन भाजपा ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। बैठक में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटका को पीएम के पास एक प्रतिनिधिमंडल ले जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर करना चाहिए। बोम्मई ने कहा, हम राज्य के पानी और जमीन से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल विवादों से संबंधित राज्य के मामलों पर सक्षम तरीके से बहस करने में विफल रही है। पीएम के पास सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। राज्य सरकार ने IA दायर करके अदालतों और न्यायाधिकरणों के पहले के आदेशों को चुनौती नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाने की कोशिश करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कोलार जिले की मूलबागल विधानसभा सीट से जेडीएस विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने ऑपरेशन हस्त की अफवाहों को प्रमाणित करते हुए गुरुवार को कहा कि उन पर और उनकी पार्टी के विधायकों पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का दबाव था। उन्होंने कहा, मुझे नई दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक मंजुनाथ ने कहा कि आलाकमान ने राज्य नेतृत्व से कर्नाटका में आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें जीतने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता दूसरे दलों से नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जब मुझे बातचीत के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया तो मैं विदेश में था। मैंने प्रस्ताव लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे जेडीएस से विधायक खींच सकते हैं। मैं कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी के सभी 19 विधायक एक मंच पर आएंगे और जेडीएस के साथ एकजुटता की घोषणा करने के लिए बैठक करेंगे। कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। बीजापुर में बाल कार्मिक जागृति कार्यक्रम का आयोजन शहर में जिलाधिकारी के सम्मुख किया गया। जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों द्वारा एक जत्था रवाना किया गया। बाल कार्मिक पर रोक लगाने के लिए जागृति लाने और अगर बच्चों से काम लिया जाता है तो ऐसे करने वाले पर 50,000 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। तो ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ। ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000ದಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ದಂಡ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಸತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಮಗೆ। बीजेपी नेता मणिकंठ राठौर को बुधवार को कलबुर्गी में पुलिस ने हिरासत में लिया। मंगलवार को राठौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पुलिस पर आरोप लगाया कि वह भाजपा कार्यकर्ता देवानंद रामचंद्र कोरबा की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे के समर्थक हैं। हाल ही के विधानसभा चुनाव में चितपुर से प्रियांक खरगे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राठौर को मैडबॉल पुलिस ने बुधवार सुबह कलबुर्गी के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। कलबुर्गी के अतिरिक्त एसपी एन श्रीनिधि के अनुसार राठौर को बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार राठौर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ता देवानंद रामचंद्र कोरबा की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि वे मंत्री प्रियांक के समर्थक हैं, जो चितपुर से विधायक भी हैं। राठौर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को चितपुर में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। हालांकि कलबुर्गी से चितपुर के लिए निकलने से पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राठौर की रिहाई की मांग को लेकर दोपहर में मडबोल पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया। राठौर 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में चितपुर से प्रियांक से 14,968 वोटों के अंतर से हार गए।
राठौड़ के खिलाफ कलबुर्गी, यादगीर, विजयपुरा, बागलकोट और बीदर जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के नेताओं ने केंद्र से रायचूर में एम्स स्थापित करने का आग्रह किया है। लघु सिंचाई मंत्री एनएस बोसेराजू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और प्रमुख अस्पताल स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। रायचूर राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और इसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार परियोजना के लिए भूमि और मुफ्त पानी उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि केंद्र को 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और अस्पताल स्थापित करना होगा। बाद में बोसेराजू ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्री ने याचिका पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, सांसद राजा अमरेश्वर नाइक और कराड़ी संगन्ना प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीजापुर से गदग के सड़क पर अचानक एक मोड़ पर एक बाइक सवार गिर गया, तब वहां से गुजर रहे मंत्री एमबी पाटिल और विधायक जीएस पाटिल का काफिला रुका और दुर्घटना में घायल युवक को गदग सरकारी अस्पताल रवाना किया गया। विभाग के अधिकारियों को युवक का अच्छा उपचार करने की सलाह दी गई। मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, लोगों ने मंत्री के इस कार्य की सराहना की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा आज बीदर के दौरे पर पहुंचे। जिला पंचायत में बैठक की अध्यक्षता की। बीदर में 27 अगस्त को रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन दौड़ का आयोजन, अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील। धमकी भरे पत्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ लेखकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। सीएम सिद्धरामैया के प्रस्ताव पर बोली बीजेपी, यह सिर्फ राजनीति है। जेडीएस का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी विधायकों पर उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।